Yes. So in gravitation, what we have seen last time is Newton's law of gravitation. जैसा कि हमको पता है already, Newton's law of gravitation tells us simply that the force of attraction between any two particles is always directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. So this is the Newton's law of gravitation, and this G is actually the universal gravitational constant, which is a constant whose value is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton per Newton meter square per kilogram square. Remember, since this value is so small, we cannot find this gravitational force to be acting in between the two smaller objects, small objects, but we find this force to be acting only in the massive objects like Earth, Moon, Sun, and planets, and so on like that. उसके बाद हमने देखा था कि gravitational force of attraction obeys the inverse square law and it always acts along the line joining the two masses. तो इसलिए कोई भी अगर मल्टीपल मासेस अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उस केस में हर पेयर के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगा and the resultant force acting on any one particular particle will be actually equal to the vector sum of the forces acting on that particular particle due to all other particles present there. So this is called as the principle of superposition, which we have studied last time. Also, we have seen already in the last lecture that the expression for acceleration due to gravity of any planet is given by this G is equal to gm upon r square, where m is the mass of the planet and r is going to be the radius of that planet. And इससे हमको दो इक्वेशंस मिले थे. एक तो ये कि gravity is inversely proportional to the r square when m is constant. Okay, अगर m constant रखेंगे तो हमको मिलता है कि g is inversely proportional to r square. And at the same time, if suppose m is not constant, instead of that, if density is constant, that means if we are talking about the two different planets like Jupiter, Earth, and Moon, like that, then in that case, the gravity is supposed to be directly proportional to the radius here. So, and it can be proved if we express the mass in terms of volume and density. So, and if we replace this value of mass here in the formula for gravity, तो ये पूरा जो है इसके अंदर r स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जिससे हमको एक r ऊपर बचता है. और इससे हम बोल सकते हैं कि gravity is proportional to r when density is constant. Okay, but gravity is inversely proportional to r square when mass is constant. तो क्या constant क्या है वो अच्छी तरह से याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो. ऐसा नहीं कि g is proportional to r है या g inversely proportional to r square है, उसके बीच में कंफ्यूज हो जाओ. ठीक है, नहीं, you have to not to confuse. We have to understand both of them are true, no doubt, but it depends what is the constant in this case. तो constant क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर मास कांस्टेंट है तो उस केस में g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है. बट अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एवरी प्लैनेट इज मेड अप ऑफ सॉइल्स एंड स्टोन्स. हर प्लैनेट जो है वो मिट्टी पत्थर से बना हुआ होता है. इसकी वजह से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन प्लैनेट टू अदर प्लैनेट or we are talking about different planets, we can say density is going to be the constant one in that case. So in that case we can prove that this g is proportional to r square here. So ये अच्छी तरह से याद रख लो. चलो, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, वेट और मास, इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस होता है वो भी हमने डिस्कस किया था. यस, चलो let us move further now here in this chapter. जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी कि अगर सपोज ये अर्थ है, ओके, और अर्थ से ऊपर सपोज एक एच इतने हाइट पे अगर हम चले जाते हैं, ये सपोज एच इतने हाइट पे एक पॉइंट है. अभी यहाँ पे अगर हमने किसी पर्टिकुलर बॉडी को अगर प्रोजेक्ट किया, एक वेलोसिटी अगर दिया, तो वो वेलोसिटी कितना है उसके हिसाब से ये बॉडी या तो
नीचे गिर जाएगा, या तो और थोड़ा ज्यादा और थोड़ा दूर जाके गिरेगा, या तो हो सकता है कि वो रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, या तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर सकता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट के रिवॉल्यूशन का भी एक पॉसिबिलिटी है, या तो इट विल जस्ट escape from the earth's gravitational field completely and forever and never will it will return back. ओके, तो ये सारे जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, तो वो हमको अभी डिस्कस करने हैं कि व्हाट हैपेंस इन व्हिच केस हियर. सो कंसीडर अर्थ टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर, एंड सपोज दैट, ये समझो अभी हम यहाँ ड्रॉ करते हैं. यस, सपोज दिस इज द अर्थ. ओके, ये अर्थ है, और मान लो कि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या हाइट पे चले गए, और उस हाइट पे हम बॉडी को वेलोसिटी दे रहे हैं. यहाँ पे सपोज हम चले जाते हैं और इस बॉडी को वेलोसिटी देते हैं. whatever velocity is given to the body will be denoted by vh. okay, vh मतलब क्या है यहाँ पे? vh stands for horizontal velocity that is given to the body. okay, but there is a concept of critical velocity. Remember, what do you mean by this critical velocity here? Critical velocity matlab the minimum velocity which is required to be given to the satellite or any object at height h above the surface, so that it will revolve in the circular orbit. okay, तो circular orbit में घूमने के लिए जो required velocity होता है उसको हम बोलते हैं critical velocity. Critical velocity, yes. okay, the velocity which is necessary for circular orbit. And there is another concept that is called as escape velocity. We can see escape velocity. What do you mean by this escape velocity? The velocity, as its name suggests, as is the velocity which is required for the body to remove from the earth's gravitational field, it is called as the escape velocity. Remember, तो अगर हमने ये बोल दिया कि ve मतलब escape velocity है, और vc मतलब क्या है यहाँ पे? सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है उसको हम बोल देंगे क्रिटिकल वेलोसिटी. यस, अभी ऑब्वियसली क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो थोड़ा कम होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर vc जो है वो अगर किसी प्लेनेट के लिए 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ve जो है वो उसके ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा होता है. 14 या 15 के आसपास हुआ करता है. 15 किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है इसके वेलोसिटी. अगर सपोज किसी प्लेनेट के लिए इन जनरल सपोज, अभी देखो होता क्या है ना कि अगर सपोज हम इस बॉडी को, यहाँ पे जो बॉडी रखा हुआ है, इसको अगर एक वेलोसिटी देते हैं जो लेस देन vc है, मतलब 10 किलोमीटर उसका क्रिटिकल वेलोसिटी है, और उससे कम वेलोसिटी, मतलब अगर सपोज हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 किलोमीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी देते हैं, या 7 किलोमीटर पर सेकेंड, या 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या 4 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा 10 से कम वेलोसिटी अगर देते हैं, मतलब vc से छोटा वेलोसिटी अगर देते हैं, तो क्या होगा? सीधी बात है कि अगर बहुत कम वेलोसिटी देंगे तो सीधा जो पार्टिकल जो है या बॉडी जो है वो सीधा जाके नीचे गिर जाएगा. एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके वो नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल. बट if suppose this velocity is slightly less than vc, मतलब अगर सपोज इस 10 से थोड़ा कम है, मतलब 8 है या 9 है या थोड़ा बहुत इक्वल है उसके, तो ऐसे हालत में क्या होता है कि द बॉडी जस्ट मूव्स विद द इलिप्टिकल पाथ. तो वो जो बॉडी जो है वो इलिप्टिकल पाथ से मूव करता है. चलो, और अगर सपोज एग्जैक्टली 10 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर देंगे तो क्या होगा? इफ यू गिव एग्जैक्टली 10 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब vh इज इक्वल टू vc अगर होगा, तो ऐसा हालत में द पार्टिकल विल जस्ट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एंड इट विल कम बैक टू द सेम पॉइंट वंस अगेन एज इट वाज प्रोजेक्टेड विथ. जहां से उसको हमने थ्रो किया था उसी पॉइंट पे वो फिर से वापस आ जाता है, और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, एंड इट रिवॉल्व्स कंटिन्यूअसली अराउंड द अर्थ फॉरएवर. हमेशा के लिए वो घूमता रहता है, इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ही घूमता रहता है हमेशा के लिए. बट द वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन इज द स्पेशल वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड एज
क्रिटिकल वेलोसिटी। रिमेंबर, जब हम उसको ये 10 एग्जैक्ट 10 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देंगे तभी ऐसा होगा, तभी ये जो पार्टिकल जो है वो बिल्कुल सर्कुलर, परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा और हमेशा के लिए घूमता ही रहेगा। This happens only when the horizontal velocity given to the body is exactly equal to the critical velocity. But if suppose the velocity given to the body is greater than critical velocity, ठीक है, तो अभी सपोज अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दिया तो क्या होगा, तुरंत तो इस्केप नहीं होता है। इस्केप कब होगा, जब वीई से भी ज्यादा वेलोसिटी है तो, या वीई इतना वेलोसिटी एटलीस्ट है, तब वो जाके इस्केप होगा। सो इफ सपोज वी हैव दैट द पार्टिकल इज गिवन द वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू वीई, देन इट विल जस्ट एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर कम बैक। इस तरह से वो आगे निकल जाएगा। अगर यहाँ पे इस तरफ अगर हम मिलेंगे उसको वेलोसिटी, तो वो इस तरफ निकल जाएगा बिल्कुल, लेकिन निकल जाएगा जरूर। तो ये होता है, this happens only when this VH is exactly equal to VE, that is the horizontal velocity given to the satellite is exactly equal to the escape velocity. Then in that case the body moves with the parabolic path. ये जो पाथ है इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। ओके, एंड इफ सपोज VH इज ग्रेटर देन VE, मतलब अगर इसके वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी अगर हम उसको देंगे, it moves with the hyperbolic path. It is more wide than this parabolic one. तो पैराबोलिक से भी ज्यादा वाइड होता है हाइपरबोलिक पाथ, इसको बोलेंगे हाइपरबोलिक पाथ। ओके, this is the path of the body when it moves with the escape velocity which is greater than escape velocity. But now the question arises, what happens when the body is given with the velocity which is greater than critical velocity but less than escape velocity? मतलब अभी देखो, अगर 10 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देके देंगे तो वो घूमता रहेगा, सर्कल में घूमेगा। अगर 15 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको वेलोसिटी जो दे रहे हैं वो अगर 10 और 15 के बीच में है, मान लो 12 है या 13 है या 14 है, मतलब VC से ज्यादा और VE से कम, ऐसा अगर हम वेलोसिटी उसको दे देंगे तो वो क्या करेगा, तो तब जाके वो जो है बॉडी जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कैसा होता है, देखो इस टाइप के इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ये देखो, दिस इज द इलिप्स, you can see clearly. इलिप्टिकल मतलब ओवल शेप में वो घूमता है। ये देखो ओवल शेप दिख रहा है, इस टाइप का ओवल, जिसका जो सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक है। यहाँ पे ये जो अर्थ है, अर्थ इज प्रेजेंट एट द फोकाई ऑफ दैट ओवल, बट दैट फोकाई इज सच दैट ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है, तो वो एक्चुअली पेरिजी बनता है। पेरिजी मतलब क्या, सबसे क्लोजेस्ट वाला पॉइंट, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी इलिप्स के बारे में ऐसा होता है कि एक पॉइंट होता है जो सबसे करीब है फोकस से, एस को अगर हम फोकस बोल देते हैं तो सबसे करीब वाला पॉइंट होता है पेरिजी, उसको बोल सकते हैं। और सबसे दूर वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं एपोजी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बिकम पेरिजी इन दिस केस। ओके, and if suppose this body is given a velocity which is even less than critical velocity, critical velocity से भी अगर कम velocity अगर उसको दे दिया, तो in that case the body will move with the elliptical path like this, but in this case the point of projection will be the farthest one, that means it will be a apogee. तो ये जो point of projection है तो वो apogee बनके वो इस तरह से elliptical path में घूमता है। तो दो केसेस में वो elliptical path में घूमता है, एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होने से भी, और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा और इसके वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होने से पे भी वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको याद रखनी है। सो इसमें एक बात तो हमको समझ में आ गई कि द क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू रिवॉल्व इट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, एंड इट्स एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन दिस इन वे, इन सिंपली। अगर सपोज हम ये जो एक्सप्रेशन अगर निकालना चाहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का, so suppose that this is the earth and suppose body is projected at this point here, so किस वेलोसिटी से हम उसको प्रोजेक्ट करना है
ताकि वो हमेशा के लिए सर्कुलर पाथ में घूमता रहे। अभी अभी हमने मोशन इन प्लेन ये जो चैप्टर किया, उस चैप्टर के अंदर हमने सर्कुलर मोशन के बारे में डिटेल में देखा, और ये भी ऑलरेडी देखा कि whenever a particle revolves in a circle, what happens is a centripetal force acts on it. So यहाँ पे हमको ये समझना है कि the centripetal force which is necessary for the circular motion of this satellite must be provided by the gravitational force of attraction between the earth and the satellite. तो अभी सैटेलाइट का मास अगर हम m मान लेते हैं और अर्थ का जो मास है वो अगर कैपिटल M मान लेते हैं, तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट? तो देखो ठीक से कि अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से। अगर ये डिस्टेंस r मान लेंगे तो हमको मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज g into capital M, that is the mass of earth, into small m, that is the mass of that satellite, divided by the distance between them, which is the small r, और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात नोट करो कि स्मॉल r जो है वो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस भी है, और एट द सेम टाइम दिस स्मॉल r इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट आल्सो। इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी कितना है? स्मॉल r ही है, बिल्कुल। तो उसकी वजह से यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, वो कितना मिलेगा हमको? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिनोटेड बाय CF। ओके, तो CF विल बी एक्चुअली इक्वल टू m into vc square अपॉन r। mv स्क्वायर अपॉन r होता है कि नहीं? तो ये mvc स्क्वायर अपॉन r, ये हमको मिल गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। But here in this case, the necessary condition for the circular motion is that the gravitational force or centrifugal force which is necessary for the circular motion must be provided by the gravitational force. So if we use this fact, centrifugal force must be equal to the gravitational force. So we can get that m into vc square upon r has to be equal to g capital M small m upon r square. So that we can get this m cancelled from both sides, and what we are left, even r also gets cancelled once from both sides, and what we are left with is simply vc square is equal to g m upon r, correct hai? And hence we can get this vc to be simplified as root of gm upon r. And one more thing is that here if we consider the radius of earth to be capital R, तो अगर अर्थ का खुद का रेडियस अगर कैपिटल R है, तो सरफेस से जो इस सैटेलाइट का जो हाइट है तो उसको हम h बोल सकते हैं। तो ये r और h इन दोनों का जो सम है तो वो बनेगा स्मॉल r। तो इस स्मॉल r के बदले हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कैपिटल R प्लस h लिख सकते हैं। सो vc कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ height of the satellite, that is root of gm upon r plus h in this way. So this is the expression for the vc, that is the critical velocity of a satellite in terms of the mass of the earth, mass of the earth. Yes, अभी इसमें देखो एक बात समझो इसमें ठीक से कि अगर एट हाइट h अगर हम देखेंगे ठीक से तो ग्रेविटी कितना होता है पता है तुमको? लास्ट टाइम हमने देखा था, एक बार वापस चाहिए तो हम देख लेंगे फटाफट कि if suppose there is a earth and suppose that particle is suppose at a height h above the earth surface, मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो h इतने हाइट पे अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटी कितना होता है वो कैसे हमको मिलेगा? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो कि अगर यहाँ पे एक पार्टिकल जो है वो उस m इतने मास का है और यहाँ पे ग्रेविटी अगर हमने मान लिया gh है, तो इस पॉइंट पे उसके ऊपर जो वेट होगा तो वो वेट कितना होगा? उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, बिल्कुल। वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला हियर, तो वेट यहाँ पे कितना बनता है? वेट के लिए फॉर्मूला है mg, बट यहाँ पे ग्रेविटी चेंज हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे gh के बराबर है, इसलिए यहाँ पे वेट बनेगा m into gh, बराबर है। एंड दिस शुड बी इक्वेटेड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द पार्टिकल हियर। तो इसलिए फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? g into capital M into small m, where capital M is the mass of earth and small m is the mass of the body where whose weight is to be found out, and that is to be divided by the distance square. तो ये जो पूरा डिस्टेंस है इसका हमको स्क्वायर करना है, जिसको हम स्मॉल r भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज नथिंग बट द कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ है देखो, और ये जो है बचा हुआ हाइट, सरफेस से जो डिस्टेंस है उस पार्टिकल का तो वो है हाइट h, और अर्थ का खुद का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो इसलिए यहाँ पे जो है
उसको हम या तो स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं और इसमें से mm कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा gh is equal to capital Gm upon small r square. And we can also express this small r in terms of capital R, so that we can get this gh is equal to capital Gm upon r plus h का whole square. Correct है? And from this only we can also get the expression for Gm. So Gm का और एक वैल्यू हमको मिल गया, that is gh into r plus h का whole square. तो याद रखो ठीक से, Gm का ये वैल्यू है capital G into capital M happens to be r gh into r plus h whole square. And even जो लास्ट चैप्टर लास्ट लेक्चर में हमने एक बात देखी थी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ, yes, gravitational acceleration due to the earth is already given by this formula, right? तो gm upon r square, ये फॉर्मूला से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है. तो ये अगर हमने बात यूज की यहाँ पे, देखो ठीक से, एक तरफ हमारे पास हाइट पे जो ग्रेविटी है वो gh इक्वल टू gm upon r square r plus h whole square है, but already we have that the gravity at the surface of earth is given by gm upon capital R square simply. So if we put this as equation number 1 and this as equation number 2, then we can just divide these two equations and get this as gh upon g is actually equal to, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, gm upon r plus h whole square आएगा. करेक्ट है? And that is to be divided by this g, which is going to be gm upon r square only. So here it is gm upon r square, so that we can just get cancelled with this gm here from numerator and denominator, and we will be left with gh upon g, which is equal to, अब ये r square जो है ऊपर चला जाएगा और उसकी वजह से हमको मिलेगा r square upon r plus h का whole square. करेक्ट है? And if we take this g in this side, then we can get this gh to be expressed in terms of g as r square upon r plus h का whole square into g. So this is the expression for gh in terms of g. Remember carefully. So if we use this formula for gh here, gh के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, gm upon r plus h the whole square. तो वो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो देखो क्या मिलेगा. Yes, but we have that gm is equal to gh into r plus h का whole square. So this formula will get modified. तो vc के लिए क्या इक्वेशन हमको बनेगा, देखो, तो vc will become actually equal to root of gm के बदले आ रहा है gh into r plus h का whole square, and that is to be divided by r plus h only. So this is r plus h here, so that you can just cancel with this r plus h once, and we'll be left with the formula for vc in terms of gh, that is simply gh into r plus h as a final. So this is again another formula for finding this vc. तो vc के लिए और एक फॉर्मूला हमको मिल गया, देखो ठीक से. So these are the two main formulae for finding this critical velocity, remember. And this formula also shows that the critical velocity is actually inversely proportional to root r, which means that as we move away from the earth's surface or center, obviously the critical velocity will go on decreasing. ठीक है? अगर हमको दूर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो कम वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा, अगर नजदीक वाले पॉइंट्स पे अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, सीधी बात है. तो ये बात याद रखो ठीक से, vc is inversely proportional to root r. इसका और एक मतलब ये भी होता है, if we consider this sun here, sun is at the center here, and suppose the first planet which is revolving here is Mercury, correct है? The second planet, as we know in the solar system, revolving around the sun is nothing but Venus. The third one is Earth. So as we move away from the sun continuously, जैसे हम मर्क्यूरी का अगर स्पीड देखते हैं तो सबसे ज्यादा होगा. Mercury will be revolving with a very high speed because it is very close to sun.
On the other hand, Venus will be moving with somewhat lower speed because it is somewhat away from the sun. तो जितना रेडियस ज्यादा उतना क्रिटिकल वेलोसिटी कम, ये हम समझ सकते हैं आराम से. अर्थ which is still farther than the sun will have slow velocity or less velocity than Venus as well as Mercury. इवन उससे भी आगे जाके चौथा जो प्लेनेट है जो कि हमको पता है मार्स, उससे भी आगे जाके सपोज सैटर्न, जुपिटर, ये जैसे जैसे हम आगे आगे जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होगा, उनका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कम 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 होता जाएगा. जितना जो ज्यादा दूर प्लेनेट है उतना उसका क्रिटिकल वेलोसिटी कम रहेगा. उसका रीजन क्या है? यस, दिस इज द रीजन. ओके, Vc is inversely proportional to root r, याद रखो ठीक से. And at the same time, we can also derive the formula for finding this Vc for a satellite which is revolving very, very close to Earth's surface. For example, if suppose we have a satellite and suppose it is revolving very close to Earth's surface. Suppose ये Earth है और satellite जो है वो घूम रहा है बहुत करीब, मतलब समझो इतने हाइट पे अगर वो घूम रहा है, ये देखो, this is the height of the satellite and it is revolving around the earth like this. So अभी इसमें देखो very close to earth surface का मतलब क्या हुआ कि r plus h का जो वैल्यू है हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, it will be nearly equal to r only because radius of earth is almost about 6400 किलोमीटर. अभी अगर 6400 किलोमीटर का रेडियस है और h जो है वो अगर सपोज मान लो 100 मीटर या 200 मीटर या चलो सपोज 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है. अब ये 100-200 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल के बराबर है कि नहीं? तो ये h का जो वैल्यू है वो इसके अंदर ऐड करो या ना भी करो तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि फॉर दिस सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, we have to assume that this r plus h is similar to very close to r. So we can just replace this capital R for r plus h whenever the satellite is revolving very close to Earth's surface. So if we do that here in this formula, then the formula for critical velocity happens to be root of gm upon capital R, because we have replaced this r plus h by simply r. But you remember that this formula is valid only for the satellite which is revolving very close to Earth's surface, which is launched at a height of 50 kilometer or 100 kilometer from the surface of Earth. तो उसका जो height है वो few kilometers में होना चाहिए, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए, ना कि उसका height जो है वो suppose 1000 किलोमीटर अगर है या बहुत ज्यादा है like 3600 किलोमीटर और 12,000 किलोमीटर और 34,000 किलोमीटर. No, in that case we are not to use this formula here. ये फॉर्मूला तभी हमको यूज करना अलाउड नहीं है. ओके, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है. स्टार्स मतलब क्या? कंडीशन अप्लाई. ठीक है ना? व्हाट इज द कंडीशन हियर? इट इज दैट दिस r plus h must be approximately equal to r, and when it will be satisfied only for a satellite which is revolving very close to Earth's surface like this. So in that case we can use this. And even ये जो है ये वाला जो फॉर्मूला है उसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं for a satellite which is very close to Earth's surface. तो उस केस में क्या होगा, gh जो है तो वो यहाँ पे g बन जाएगा. करेक्ट है? और ये जो r plus h है उसके बदले अगर हम r डाल देंगे कैपिटल R तो ये हमको मिलेगा फॉर्मूला Vc का, that is root of g into r. So this is going to be actually the formula. Once again, this is not for all the satellites. It is only for those satellites which are revolving very close to Earth's surface like this. Okay, and even we can also express this formula in terms of density, because we already know that the density is nothing but mass upon volume. Correct hai? So if we use that here, then we can be able to get that. See here, if we use this formula, तो Vc equal to क्या है? Root of gm upon r है, बराबर. But mass equal to क्या होता है? Volume into density.
वॉल्यूम मतलब क्या, अर्थ का वॉल्यूम हमको जैसे कि पता है, इट इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी इज नथिंग बट रो. So if we replace this here, then we can get this simplified as Vc is equal to root of, यहाँ पे g into ये m के बदले क्या आएगा, उसका वैल्यू जो कि 4/3 पाई r cube into rho, and that is to be divided by r only, so that this r just gets cancelled, and what we are left with is Vc is equal to, तो 4/3 into g into pi into rho into r, r कैंसिल हो गया, एक r स्क्वायर बचा रहेगा यहाँ पे, r स्क्वायर. Okay, but as we know that this square root sign is there and also 4 is also there, so we can take this 4 and r square out of the square root sign, so that we can get this simplified as Vc is equal to 2r into root of pi rho g r upon 3. This is going to be actually the formula for escape critical velocity in terms of density of the planet. Okay, तो डेंसिटी के फॉर्म में ये हमको मिल गया, और इससे पता चलता है कि Vc इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, जिसका मतलब ये है कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल R. बट व्हेन वी हैव टू यूज दिस, देखो Vc अभी 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 हमने यहाँ पे देखा कि Vc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ R, ये हमने देखा है यहाँ पे. ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि Vc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R, और ये वाला फॉर्मूला क्या बता रहा है कि Vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अभी इन दोनों का यूज कैसे करें, देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अबाउट द सेम सेंट्रल प्लैनेट, सी हियर फॉर एग्जांपल, सपोज एक ही सेंट्रल प्लैनेट के आसपास घूमने वाले बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमको क्या बोलना है, ये सपोज ये सेंट्रल प्लैनेट है जिसका मास कैपिटल M है, तो ये जो प्लैनेट है ये फर्स्ट प्लैनेट, ये सपोज यहाँ पे सेकंड प्लैनेट, ये थर्ड प्लैनेट, ये फोर्थ प्लैनेट. जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, R जो है वो बढ़ता जा रहा है, करेक्ट है नहीं, R1 R2 R3 R4 we can say. So here we can see that Vc is going to be inversely proportional to root R. Okay, but then what does this mean, जो अभी अभी हमने देखा था कि Vc is proportional to capital R. Vc proportional to capital R का यूज हम तब करेंगे जब एक तो सैटेलाइट शुड बी रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस. ओके, इफ सपोज वी कंसिडर 3 planets, one is suppose the moon, सपोज ये मून है. ओके, फिर उसके बाद दूसरा जो है वो हम कंसिडर करते हैं ये अर्थ है सपोज, यस, और तीसरी तरफ जुपिटर, ठीक है, जो कि उससे भी ज्यादा है, बड़ा है, यस. तो अब ये तीनों के बारे में अगर हम बात करते हैं ठीक से, दिस इज सपोज मून, दिस इज द अर्थ and this is Jupiter. Okay, if you want to launch a satellite in an orbit very close to surface for the moon, earth and Jupiter as well, तो अगर यहाँ पे हमको एक सैटेलाइट लॉन्च करना है इधर, ऐसा देखो, suppose a satellite is launched here in the orbit of moon. ओके, मून के ऑर्बिट में बहुत नजदीक एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, वैसे ही अर्थ के भी नजदीक, सरफेस के नजदीक एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, और जुपिटर के भी ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में नजदीक में सैटेलाइट एक लॉन्च किया. ओके, तीनों केसेस में अगर देखेंगे ठीक से, तो किसको हमको ज्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी देना पड़ेगा. मून का देखो रेडियस छोटा है, अर्थ का रेडियस बड़ा है, और जुपिटर का रेडियस और ही बड़ा है. तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा तो Vc भी बढ़ेगा. मून के ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए हमको कम वेलोसिटी देना पड़ेगा, अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जरूर ज्यादा रेडियस, ज्यादा इसके क्रिटिकल वेलोसिटी देना पड़ेगा, और जुपिटर के ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए जरूर और ही ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा. Here is the case, we can say that Vc is proportional to R. As R increases,
VC also increases, but only when we are talking about different planets. Okay, अगर planet अलग अलग planets के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेनेट के आसपास हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, वही हमको दूसरे प्लेनेट के आसपास सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो उसके लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है वो डिपेंड करता है कि उस सेंट्रल प्लेनेट का रेडियस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो जितना सेंट्रल प्लेनेट का रेडियस ज्यादा, उतना क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज्यादा, और जितना सेंट्रल प्लेनेट का रेडियस कम, तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी कम। बट दिस हैपेंस ओनली व्हेन यू हैव टू लॉन्च अ सैटेलाइट in a circular orbit around different planets like this. Now we'll talk about the period of revolution. Okay, period of revolution. जैसे देखो, अगर सपोज एक मान लो एक planet है just like Earth, and suppose that satellite is launched in a circular orbit around it in this way. अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में हमने एक सैटेलाइट को इस तरह से लॉन्च किया और वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो the time taken by this satellite to complete one full revolution is called as the period of satellite, period of revolution of the satellite. And this is what we have discussed in the last slide. Someone asked to open the last slide so that you can copy the formula. ये formula अच्छी तरह से copy करके लो, ठीक है, which is the formula for critical velocity in terms of density of the planet. Remember. Okay. तो जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे पीरियड के बारे में, if suppose this satellite is projected with a velocity vc here, then the period of revolution can be obtained by just simply, देखो, क्योंकि एक पूरे डिस्टेंस, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है हमको पता है, टाइम फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात पता है सभी को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम हमको निकालना है, जो कि पूरा रिवॉल्यूशन करने के लिए जो लगता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके जब ये सैटेलाइट यहाँ पे आएगा तो कितना डिस्टेंस परफॉर्म करेगा, it will perform, or it will travel a distance that is 2 pi r, that is the circumference of the circle. Okay, r is going to be the radius of this circular orbit, okay, which happens to be same as sum of r, that is the radius of earth, and the height of the satellite, that is the distance from the surface to the satellite here. Okay, तो ये एक सैटेलाइट है सपोज, तो अभी इसमें देखते हो कि 2 pi r upon vc, this will be the formula for period of revolution. But as we know that vc is already root of gm upon r, small r, correct hai? So if we replace it by that here, then we get this period of revolution to be simply 2 pi r, the whole divided by this root of gm upon r, correct hai? So that we can just invert this formula here. इस इक्वेशन को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि VC जो है ये पूरा है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा होके जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसलिए फिर पीरियड जो है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट विल एक्चुअली बी गिवन बाय 2 pi r into root of r by gm, करेक्ट है? बट हियर वी कैन सी क्लियरली दैट दिस r is here and also r is here, तो यहाँ पे दो जगह पे r है, तो हम क्या करेंगे, इस r को अंदर भेज देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर भेज देंगे। और ये सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज, कोई भी क्वांटिटी जब स्क्वायर रूट के बाहर से अंदर जाता है तो क्या होता है, वो स्क्वायर हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ 2 पाई बाहर रहेगा और यहाँ पे अंदर जाने के बाद ये r स्क्वायर हो जाएगा। r तो ऑलरेडी था अंदर और ये r जो है वो अंदर जाके r स्क्वायर बन गया, तो इसकी वजह से ये r स्क्वायर इंटू r क्या बनेगा, r क्यूब बन जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज r क्यूब एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय gm, राइट है? सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द period of revolution of any satellite in terms of the radius of its orbit. But if we want to express this in terms of the height and radius of earth, then we have to replace this small r to be simply r plus h, correct? And hence we can get this as t is equal to 2 pi
इंटू रूट, यहाँ पे स्मॉल आर के बदले क्या आने वाला है, कैपिटल आर प्लस एच और उसका होल क्यूब, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय जीएम. बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट स्लाइड दैट, देखो अभी अभी हमने देखा था कि g का जो है, g का वैल्यू एक तो हम निकालते हैं सरफेस पे और दूसरा हम निकालते हैं हाइट पे. तो हाइट पे अगर gh का वैल्यू हम इस तरह से निकाल रहे हैं तो gm का और एक वैल्यू हमको मिल जाता है. gm का वैल्यू मिलता है gm इज इक्वल टू gh इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर, और gm का वैल्यू एक तो ऑलरेडी है जो इस फॉर्मूला से हमको मिल सकता है, जो कि g इंटू आर स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे gm के दो वैल्यूज मिलते हैं. gm इज equal to gh into r plus h whole square also, and this gm is also equal to g into r square also. तो ये दोनों वैल्यूज gm के हैं, उनको हमको जब चाहे तब यूज करना पड़ता है, याद रखो हमेशा, ठीक है ना. सो इफ वी यूज दिस वैल्यू ऑफ gm, ये जो वैल्यू gm का है वो अगर हम यूज करते हैं अभी इस इक्वेशन के अंदर, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का इक्वेशन हमने अभी डिराइव किया है उसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि gm इज नथिंग बट gh into r plus h the whole square, so that we can get this period of revolution of the planet will be equal to 2 pi root, yes, r plus h the whole cube divided by gm, where gm is nothing but gh into r plus h the whole square, correct hai? So that this r plus h whole square gets cancelled, and one r plus h will be left in the numerator, and we will get it as 2 pi root r plus h upon gh. This is again another formula for the period of satellite in terms of gh, okay, at a height h above the surface. And even again, once again, if we consider suppose that this is suppose the earth, and suppose the satellite is revolving very close to the earth surface like this. अगर बहुत नजदीक अगर वो घूम रहा है, अभी बहुत नजदीक का मतलब क्या है, h is very small, means it is so small that r plus h can be negligibly nearly equal to r only. That means h is nearly equal to 0. The height of the satellite must be very small as compared to the radius of earth. अभी देखो negligible small होने का मतलब क्या है, हाइट इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हाइट विल बी 1 or 2 सेंटीमीटर्स और इन मिलीमीटर्स. नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स, इट इज गोइंग टू बी 100 किलोमीटर्स. अभी 100 किलोमीटर ये कौन से एंगल से स्मॉल है, निग्लिजिबल है. इट इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर. तो रेडियस ऑफ अर्थ के सामने हमको देखना है, हमारे सामने नहीं, ठीक है. हमारे हिसाब से वो निग्लिजिबल नहीं है. 100 किलोमीटर मतलब हमारे हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन so far as the radius of earth is concerned, we can call this 100 kilometer to be very small and neglect it. And that's why we can use that whenever the satellite is revolving very close to earth's surface, height can be negligibly small. That means it can be neglected, and in that case we can just replace this r plus h by this r only, and this formula for period of satellite, this one here, will be modified, and we can get it as t is equal to 2 pi root simply r cube upon gm. तो देखो ठीक से ये हमको फॉर्मूला मिलता है इस तरह से पीरियड ऑफ सैटेलाइट के लिए. और इवन अगर यहाँ पे भी अगर हम उसको यूज करेंगे तो इससे भी हमको और एक इक्वेशन मिलता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, अभी इसमें फिर से क्या करना है, r प्लस h के बदले r डालना है, तो ये रहा r, और gh के बदले क्या रखना है, सिंपली g रखना है, क्योंकि ये सरफेस के नजदीक है ना, तो सरफेस के नजदीक gh होगा या g होगा, जरूर g होगा. तो ये और एक फॉर्मूला हमको मिल जाता है. बट रिमेंबर दैट दिस टू फॉर्मूले आर नॉट टू बी यूज्ड एनीवेयर, but they are to be used only when the satellite is revolving very close to earth's surface, so close that h should be negligibly small as compared to radius of earth. Also it should be, h should be so small that r plus h should be nearly equal to r here, remember. And also if we just replace this mass by the volume into density, तो मास को अगर हमने 4/3 into pi r cube into रो ऐसा अगर एक्सप्रेस कर दिया,
तो ये मास के बदले हम यहाँ पे उसको डाल सकते हैं आराम से, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का और एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, जो कि पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर क्यूब एज इट इज, एंड हियर जी इंटू एम, एम के बदले क्या आने वाला है, तो ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, करेक्ट है. But here we can see clearly that this r cube and r cube will get cancelled, and even this 3 also will go up, and it becomes t is equal to 2 pi root, ये 3 ऊपर जाने से वो बन जाएगा 3 upon 4 pi rho g. Okay, and if we just take this 2 pi also inside the square root sign, तो square root sign के अंदर अगर उसको डाल देंगे तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा t is equal to रूट में पूरा, तो ये 2 पाई जो है वो अंदर चला गया, तो इससे हमको मिल गया 4 पाई स्क्वायर, करेक्ट है, 4 पाई स्क्वायर, एंड दिस 3 इज ऑलरेडी देयर इनसाइड द ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर, एंड दिस 4 पाई रो g is kept as it is in the denominator, so that this 4 gets cancelled and also pi gets cancelled once, and what we are left finally is root of 3 pi upon rho g. This is the final formula for finding the period of revolution of a satellite which is very close to Earth's surface in terms of density. See here, ये हमने density के form में express किया है. Yes, so remember this formula also and write down this. और इसका जो interpretation है कब use करने का, और even ये t और r का जो variation है उसका जो interpretation है, तो वो हम कल के lecture में देखेंगे. जैसा अभी हमने देखा था, T is VC is inversely proportional to R, and at the same time we also seen that VC is directly proportional to capital R, और दोनों कभी यूज करने का, तो वो भी हमने देखा उसका इंटरप्रिटेशन. तो अभी हम इसका जो पीरियड का जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब उसका जो वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ अर्थ एंड विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी, वो हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में. चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर. Yes, thank you all of you. अच्छा, one thing